Good morning, dear church. शुभ प्रभात कलिसिया। Thank you, Glory, for reading God's word, and we are happy to see our children grow in the Lord, and let's continue to pray for them as a church. को शुरुआत देखने की ग्लोरी परमेश्वर के वचन को पढ़ा और इस बात से खुश हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर के मार्गों पर चल पा रहे हैं। We have been going through the book of Genesis, and we are in chapter 4. हम लोग उत्पत्ति उसकी चौथी अध्याय से कुछ बातों को देख रहे हैं And last week we talked about the death by sin. और हमने पिछले हफ्ते बात किया कि पाप के कारण मृत्यु उत्पन्न होती है। Today we're going to talk about the debt of sin. और आज जो है हम लोग पाप के कर्जे के बारे में बात करेंगे। I know of a young man, मैं एक जवान व्यक्ति के बारे में इस बात ऐसे कुछ जानता हूँ and one of his biggest problems in life is taking debt, loans. और उन भाई साहब का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो लोन पे लोन लेते रहते हैं And with every additional loan, there comes a feeling, not a feeling, an experience of not being able to pay it back. और कर्जे पे कर्जा लेने से ये होता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आप उससे वो कर्जे को आप चुका नहीं पाते हैं। And I've noticed one more thing. एक और चीज को मैंने ध्यान When दिया, the loans become unpayable, जब आप ऐसे कर्जे पे आ जाते हैं, कर्जे के अधीन आ जाते हैं और जहां पर आप उसको चुका नहीं पाते, one of the noticeable factors of his life is that he alienates himself, or he's a drifter. और वो व्यक्ति क्या करता है, restless wanderer. ये जो व्यक्ति क्या करता है, वो लोगों से भागना शुरू करता है, वो छिपना शुरू कर देता है। That's what we find in today's passage. I'm going to focus between 10 and 12 of chapter 4. और आज की जो अध्याय हैं, जो आयतें हैं, उनमें से मैं इन बातों को आपके सामने समक्ष रखना चाहता In हूँ। verse 10, we're going to talk about the debt we incur. और आज जो पहला जो बिंदु जो हम देख रहे हैं, वो कर्ज जो हमारे ऊपर आता है, And verse 11 and 12, we're going to talk about the drift we live in. और 11वीं और 12वीं आयत में जिस रीति में हम चलते हैं, उस बहाव में, जिस बहाव में हम चले जाते हैं, उसके बारे में हम कुछ बातों को So देखेंगे। would you turn with me to read verse 10? आइए उत्पत्ति उसकी चौथी अध्याय मेरे साथ कलिसिया में चाहता हूं कि हम सब अपने बाइबलों को खोलें। उत्पत्ति उसकी चौथी अध्याय को हम पढ़ें और उसकी 10वीं आयत को। The debt we incur. And the word says, Then he said, God is speaking, right? What have you done? Your brother's blood cries out to me from the ground. Would you close your eyes with me in a word of prayer? Heavenly Father, as we speak from this passage, as we as a church hear from this passage, tune our hearts and minds to you, Lord. Help us to listen to your word carefully and to imbibe everything so that we and our lives would result in an act of worship of you and to be a life to be lived for you, fighting every battle that we can with sin in this present age. We offer this prayer in Jesus' precious name. Amen. The debt of sin. That's what we are looking at this morning. आज की सुबह हम पाप का जो कर्जा है उसके बारे में कुछ बातों को देख रहे And हैं। if you notice in verse 10, it starts off with the question, what have you done? और यहां पर 10वीं आयत में परमेश्वर ये सवाल पूछ रहा है, तूने क्या किया है? Cain has incurred a debt. That's the first point, the debt we incur. और यहां पर काइन के ऊपर एक कर्जा है और वही पहला मेरा बिंदु है कि कर्जे के कारण हमारे ऊपर कर्जा आ गया So है। the question is clear, loud and clear from God. What have you done? There is an act of violence that Cain has done. यहां पर परमेश्वर की सवाल बिल्कुल स्पष्ट है कि हे कैन, तूने क्या किया है? हम कैन जानते हैं उसने एक हिंसा का कार्य करा है। Death and killing is not part of God's design for creation. जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई तो उसमें मृत्यु या हिंसा का उसमें कोई भाग नहीं था। But here you have, alas, Cain killing his own brother Abel. परंतु यहां पर हम देखते हैं पाप के कारण काइन जो है अपने भाई हाबिल को मार देता Here है। God is not seeking investigative. This is not an investigative question to find out forensic details on how the death happened and all of that. This is a rhetorical question to evoke in Cain the sense of the dread with which he has acted upon. यहां पर परमेश्वर जांच नहीं कर रहा है, जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि किसने क्या किया, कैसे हुआ,
मगर तो वो चाहता है कि वो सवाल पूछकर कैन से वो बातें निकाल, वो कैन के अंदर जो भाव है उसको समझ पाए। Cain, what have you done? यहां पर कैन है, कैन तूने क्या कर डाला You है? have no right on the life of Abel. That's my life. जो जो जान तूने ली है वो तुम्हारी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके जान मेरे हाथ में है। God has asked similar question to his mother Eve. और यही सवाल परमेश्वर ने ईव से पूछा जो उसकी माँ है। What have you done? उसे सब इस करीब करीब यही सवाल कि तूने क्या कर डाला है। That's the question that we should wrestle with this morning. प्रिय चीजों, ये सवाल जो है एक ऐसा सवाल है जिससे हमें हमारा आमना सामना होना This morning, चाहिए। that question should rattle our spirits from within. और ये ऐसा सवाल है जिससे कि हमारी जो आत्मा है वो अपने आप में झंझोर जाए। This is God asking this question to us this morning. What have you done? क्योंकि परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि आपने क्या कर डाला है। Because for us, sin has become a minimized activity of our life, something which we live with, because we are always in the presence of sin. So what's the big deal? तो हमने क्या किया है, क्योंकि हम पाप के इर्द गिर्द रहते हैं, पाप हमारे जब हम पाप होता है हम उसको छोटा कर देते हैं, उसको उसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई है, हम ये बात को पाप के बारे में हम ऐसा सोचने लगते हैं। So the question that comes to our mind is the question that God is asking Eve for plucking of a fruit is, what have you done? And the question that God asked Cain for killing of his brother is the same question, what have you done? आप देखिए, जब ईव ने एक फल निकाल के तोड़ के खाया तो एक छोटा, वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें भी परमेश्वर वही सवाल पूछता है। क्या पूछता है कि ईव तूने क्या किया। परंतु यहां पर कैन जब हाबिल को मार डालता है, फिर परमेश्वर क्या सवाल पूछता है, वही सवाल पूछता है कि कैन तूने ये क्या किया है। Now, so therefore, with that question in mind, one must conclude that something serious has happened here between Cain and Abel. और जब ये सवाल परमेश्वर पूछ रहा है तो ये बात हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कैन और हाबिल के बीच में कोई बहुत बड़ी गंभीर बात घट There is a चुकी है। premeditated murder that has happened. ये एक ऐसा हत्या है जो कैन अपने मन में योजना बना के उसने हाबिल को मारा है। Something has seriously gone wrong in the good creation God has created. परमेश्वर की अच्छी सृष्टि में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। And what has gone wrong? तो प्रिय चीजों, सवाल उठता है कि क्या गलत हो गया है। If God stands for, if He is the originator of life, अगर परमेश्वर जीवन का स्रोत है, and if His design does not carry the design of death, the patterns of death, उसकी जो संरचना में हम मृत्यु को नहीं देखते you हैं, have something which stands in opposition to God's purpose and will and His very character here in this passage. परंतु हम यहाँ पर ऐसा कुछ देखते हैं जो परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ, विपरीत खिलाफत में खड़ा हो चुका है। Sin is nothing but an opposition to life and love originating from who God is. प्रिय चीजों, अगर आप पाप को परिभाषित करिए तो वो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि परमेश्वर से जो जीवन और प्रेम निकलता है उसके खिलाफत में पाप खड़ा रहता For है। life was not created for killing, life was created for belonging, life was created for relationships, right? Life was created for community, communal living. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने जब संरचना सृष्टि करी तो उसने जीवन जब बनाया वो मृत्यु के लिए नहीं, वो हत्या के लिए नहीं, परंतु जीवन के लिए, संबंधों के लिए, समूह के लिए परमेश्वर ने जीवन को बनाया है। So in Cain, you have the first cardinal violation of God's law. Love your God and love your neighbor. He fails doing either. और यहां पर कैन क्या करता है, जो सबसे सिद्धांतिक बात जो है, सिद्धांत जो है, आधारिक सिद्धांत जो है, उसका उल्लंघन कैन कर देता है। वो जो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है और साथ साथ अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। Let's take sin seriously, my dear church. प्रिय चीजों, मैं आज की सुबह सबको बोलना चाहता हूं, पाप को बड़े गंभीरता से लें। We've gathered here around the table because Christ died for our sins on that rugged cross. हम ये जो मेज के चारों तरफ इसलिए इकट्ठा हुए हैं,
एकमात्र कारण वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। And therefore, when we come together, we examine ourselves as a church. और इसलिए जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हम अपने मनों को जांचते हैं, For we know that every sin is against God and in opposition to His purposes. क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि हर एक पाप परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की खिलाफत में है। For the last 2 Saturdays, we were talking about the sin of laziness. हम लोग पिछले 2 हफ्तों से अपने बाइबल स्टडी जो सैटरडे में होता है उस पे हम लोग आलस के बारे में विचार विमर्श कर रहे And हैं। today morning, when I was reading through this manuscript, I wrote down, my sin of laziness is against the very purpose for which I'm created by this living, loving God of the Bible. तो इस बात को मैंने लिखा कि मेरे जीवन में आलस का जो पाप है वो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके उद्देश्य के खिलाफ है, उसने जो सोचा है उसके खिलाफ है। So when you read these 2 verses between 10 and 12, you know that something has seriously gone wrong and something seriously stands in opposition to God and His work and His creation. जब परमेश्वर को ये सवाल पूछना पड़ गया कि तूने क्या किया, तो हम बड़े साफ तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई गंभीर घटना घटी है, जिस कारण परमेश्वर ये सवाल पूछता है। Cain, where is your brother? What have you done? तो कहीं तेरा भाई कहाँ है और तूने क्या कर डाला है? Oh, an intentional, planned, premeditated murder. यहां पर हम एक हत्या देखते हैं जो योजना के अनुसार सोचा गया हत्या है। Cain believes that he has done this act in no one's sight, no one has seen him. और यहां पे काइन सोच रहा, अरे यार मैंने जब हत्या करी तो किसी ने नहीं देखा, It's out in the field, खुले खेत में है, probably his own field, उसके खुद का खेत हो सकता है, and he has no witness, is what probably he thinks. और वो इस बात को सोच रहा है कि किसी ने देखा नहीं, ये हत्या हुई तो किसी ने ये देखा थोड़ी ना You see, है। that's how we think about sin. प्रिय चीजों, जब हम पाप करते हैं या पाप के बारे में हमारी सोच कुछ इस प्रकार है, You know, we think that God, no one sees, no one witnesses. हमको लगता है कि जब हम पाप करते हैं तो कोई देख नहीं रहा है। And most of our sinful life is, you know, the other day a few of us had gathered and we were talking about how we hide a lot about ourselves. पिछले कुछ So we have an exterior personality and then we have a interior personality. And बीच में थोड़ी बातें लीक हो जाती हैं, इधर उधर लोगों को दिख जाती हैं. But in most occasions, we are very good at hiding who our real self is. We are very good at hiding our sins. हम कुछ दिन पहले हम ये बात कर रहे थे और ये बात हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है एक ऐसा जीवन जीते हैं जो बाहर का जो जीवन है ये बाहर के बाकी लोगों को दिखने वाला एक जीवन होता है, और एक ऐसा जीवन जो सिर्फ मैं अपने साथ जीता हूं, और उस जीवन को हम जो मैं अपने साथ जीता हूं उसको मैं लोगों से छिपा कर रखता हूं। बीच बीच में इधर उधर 2-3 बात निकल जाती होगी, मगर मैं हर कोशिश ये करता हूं कि ये मेरा जो जीवन है ये बाहर के लोगों को या दूसरों को पता नहीं चलना But there चाहिए। is one witness. परंतु इन सब के बीच में प्रिय अजीजों एक गवाह है, And that witness is asking the question to Cain, what have you done? जब किसी ने नहीं देखा एक गवाह ने देखा, और वो गवाह काइन से पूछ रहा है कि हे काइन, ये तूने क्या किया? God who saw what Eve has done has seen what Cain has done. जिस परमेश्वर ने देखा ईव ने क्या किया, वही परमेश्वर देख रहा है कि काइन क्या कर रहा है। So what has gone wrong? यहां पर क्या गलत हो गया है? Cain has rejected the very presence of God. यहां पर काइन जो है उसने परमेश्वर की जो उपस्थिति को ही तिरस्कार कर दिया। He has rejected the very presence of God from which he should have taken his identity, rejected that to create his own identity. जिस परमेश्वर से और परमेश्वर की उपस्थिति से उसको अपना पहचान निकालना था, अपनी पहचान जिससे बनानी थी, उसी परमेश्वर को और उस परमेश्वर की उपस्थिति को काइन क्या करता है?
उसको तिरस्कार कर an देता है। identity of being self-made man. यहां पर काइन कहता है कि देखो परमेश्वर का तो पता नहीं, मैं अपने आप को बनाने की कोशिश An करता identity हूं। of being better than his own brother. मैं एक ऐसी कोशिश करता हूं जहां पर मुझे अपने भाई हाबिल से बेहतर दिखना है। Oh, a identity which comes from a certain class, certain regional aspects, and that's what is fueling Cain's mindset. यहां पर काइन जो है वो दिखाना चाहता है कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं अपने भाई से तो कम से कम बहुत बेहतर हूं। Oh, the identity which he should have gotten or received from God and his presence in his life is rejected. And now the identity Cain has is that of, in the Near Eastern cultures, the names portrayed the character of the person. The word Cain means productive, successful, while Abel meant, sorry Abel, nobody. Abel meant nobody. और अगर काइन का शब्द को अगर आप मूल भाषा में देखेंगे तो उसका ऐसा कोई मतलब है कि बहुत ही सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, जो कि योग्यता के साथ चीजों को कर पाए। और हाबिल को अगर आप उस शब्द को देखेंगे तो उसका से एक तरीके से कोई मतलब नहीं या कोई व्यक्ति नहीं, उस तरीके से आप उसको कह सकते हैं। That's why when Cain is born in chapter 4, Eve's excitement is quite palpable in this passage. और इसलिए काइन का जब वो पैदा होने का जो समय है, आप देखते हैं कि ईव जो है वो काफी खुश है। But when Abel is born, there is no such celebration, jubilation or excitement. और मगर जब हाबिल का जन्म होता है तो वहां पर आप उसको बड़ा रोमांचक, या वहां पर कोई कि ईव को कुछ और कर रही है, हवा कुछ और दिखा रही है, ऐसा वचन में नहीं Now, लिखा I've been गया using है। that word identity. मैं पहचान जो शब्द है कुछ समय से इस्तेमाल कर रहा Now, हूं। what does that mean? आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि ये पहचान का मतलब क्या है। It means it is your worth with which you rely to justify your own life on earth. इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा सोच है या ऐसी प्रणाली है जिससे कि आप अपने जीवन को दूसरों के सामने सही दर्शाते So हैं। people define themselves by their careers, relationships, accomplishments, individual characteristics. Yeah, any or everything can be worked together to make your identity. That forms your identity. और पहचान हम कैसे बनाते हैं? हम पहचान बहुत चीजों में बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, देखो मैं इस ऑफिस में ऐसे पोजीशन में काम करता हूं, या हम अपने गाड़ियों में मैं ये गाड़ी चलाता हूं, मेरा ये घर है, मेरा बैंक बैलेंस ऐसा है, या मैं इस पृष्ठभूमि से आता हूं, या मैं उस परिवार से आता हूं। हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर हर चीज के आधार पर या जो चीज हमें पसंद है उसके आधार पर अपने पहचान को बनाते हैं। And some people make their identity on मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है. और That's their identity. कुछ लोग कहते हैं कि या वो अपनी पहचान को इस प्रकार कहते हैं, देखिए भाई साहब मुझे नहीं पता मगर मैं ऐसा ही हूं, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। Now Miroslav Volf says Cain's identity was constructed in relationship with Abel. Cain was who he was because he was better than Abel is what he thought. और यहां पर ये व्यक्ति जब इस पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि काइन की गलती ये थी, या वो इस प्रकार उसको हम समझना चाहिए कि उसने अपनी पहचान को किसके आधार पे बनाया? हाबिल के आधार पे बनाया। काइन को ये लगता था कि काइन जो है हाबिल से बेहतर है। I know of a young man, मैं एक और जवान व्यक्ति को जानता I हूं। mean my contemporary, my age, जवान नहीं, हाँ एक और जवान को मैं जानता हूं। बूढ़े नहीं हो रहे। Who in my growing up years in my back in my hometown church, और मैं जहां पर हम लोग इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद के कलीसिया में या वहां पर उस समय पर his identity was based on the fact that the number of people talking to me should be the same number of people talking to him. And in case there was a tip over on my side of people talking, and if that particular person was not talking to him, then there would be, his identity would collapse completely. धराशायी हो जाता। इनका पहचान कुछ इस प्रकार बनती थी। उनका पहचान ये था कि जितने लोग मेरे से बात करते हैं उससे ज़्यादा लोग
मुझसे उस भाई से बात करते, उस पर उस भाई ने अपने पहचान को बना रखा था, स्थापित कर रखा था। So that's- कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग शायद जब मुझसे ज्यादा बात करें तो ये व्यक्ति का जो जो पहचान थी वो धराशायी हो जाती थी। So what am I getting to? What I'm trying to say, we construct fragile identity, and that's the basis of all our problems. और हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने ऐसे ऐसे पहचान को बना रखा है जो छूते ही, कुछ भी होते ही टूट के चकनाचूर हो जाता है। A couple of years back, it was around the post-COVID times, I received a call at around 1 a.m. in the night. एक कोविड का समय था, एक रात 1 बजे करीब मुझे एक फोन आता है And the person across the call was crying, and she was sobbing. और जिसने मुझे फोन किया वो रो रही थी। She was at that point recently hired as an employee with one good firm. और उसी समय पर जब उसने फोन आया, उससे कुछ पहले ही वो एक ऑफिस में कार्यरत थी And within a fortnight of her hiring, she was fired from work. और करीब एक महीने का अधीन कम से कम उतने अंतराल में ही उसको कंपनी ने अपनी नौकरी से बाहर निकाल दिया। Why did they fire her? Because they felt that she was not competent enough. और क्यों जिस कंपनी ने उसको हायर किया था, क्यों उसको निकाल दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जितनी योग्यता चाहिए उस काम करने के लिए उसमें वो है नहीं, वो इतनी सक्षम नहीं है। And the one thing she kept repeating was, I just want to end everything. I am done. और ये एक चीज वो बार बार बोल रही है कि ऐसा मेरे साथ हो गया, अब मुझे जीने में कोई मतलब नहीं दिखता, मुझे अपने जीवन को खत्म करना है। All my life I've been a student here in Mount Carmel, an A grader, but how can they say that I'm an incompetent person? My record doesn't say that. What is happening? Her identity is so fragilely based on her achievements, not on who she is in the sight of God. और क्या हुआ यहाँ पर, एक छोटी सी एक बात घटी है, उसमें ये व्यक्ति जो है अपने जीवन को अंत करना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि जब मैं विद्यार्थी थी, मैं बचपन से ही सबसे क्लास में नंबर 1 आती थी, अब ऐसे मेरे साथ कह सकता कि मैं जो कि इतनी सक्षम हूं, ये कंपनी मुझसे कह रही है कि मैं सक्षम नहीं हूं। ये व्यक्ति ने एक नाजुक पहचान को बना लिया जो कि परमेश्वर पर नहीं आधारित था, अपने तरीके से अपने जीवन पर आधारित है। What's happening in our passage? Cain as somebody और यहां पर जो देखते हैं हम लोग, काइन जो है can't stand. His identity collapses within himself when Abel, a nobody, has been favored in his worship. यहां पर काइन जो है वो परेशान क्यों हो जाता है? उसकी जो पहचान है, इस पहचान आधारित थी कि वो हाबिल से बेहतर है, परंतु जब हाबिल के बलिदान को स्वीकार कर लिया जाता है परमेश्वर द्वारा, काइन का जीवन क्या होता है? उसकी जो पहचान है वो चकनाचूर हो जाती है और वो इस दशा में पहुंच जाता है। It's a good time for us to take a look within ourselves and understand what is our identity. Who are we that we claim to be? Because there are umpteen things that shape our identity. It could be the past, it could be our competition with someone else, it could be the upbringing that we've had, it could be so many things. There are 100,000 scores of things that shape our identity. And the problem is that we continue to live in that identity, and that is why we tow with sin. प्रिय जीजो, आज की सुबह एक बहुत अच्छा समय है कि हम थम कर एक बार हमने अपनी पहचान किस बात पर बनाई है उसके बारे पर सोचें। क्या वो मेरे परवरिश पे है? क्या वो मेरे पृष्ठभूमि पर है? या मेरे पालन पोषण पे है? मेरे पढ़ाई लिखाई? ऐसे हजारों करोड़ों कारणे हो सकते हैं जिस पर आप और मैं अपने पहचान को बनाकर आज यहां पर बैठे हैं। मगर अब वो परमेश्वर नहीं है तो वो पहचान जो है हमें पाप की तरफ ढकेलता है, हमें पाप की दिशा में ले जाता है। If your identity is apart from the love of God, then what you have is a very fragile identity. And I'm telling you this morning, if you carry on that identity of who you are, you're going to break your heart and break the heart of others too. प्रिय चीजों, अगर आपकी पहचान आज की सुबह
परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर के प्रेम को छोड़ अपने चीजों पे है, अपने जीवन के किसी अंश, किसी अंक पे है, तो मैं ये बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि वो आप एक नाजुक पहचान है, एक भंगुर पहचान है जो टूटने के लिए इंतजार कर रही है, और वो टूटेगा, और वो सिर्फ आपको नहीं तोड़ेगा, वो आपके साथ के लोगों को भी तोड़ देगा। And therefore, sin, let me add this to our definition of sin. Sin, among a host of other things, is maintaining an identity which is apart from God and His love for us. बाकी पाप की कई परिभाषाओं में एक और परिभाषा को मैं जोड़ना चाहता हूं। पाप जो है प्रिय जीजो, वो हमें प्रभावित करता है, हम पर हावी होकर इस बात को स्थापित करता है कि परमेश्वर को छोड़कर हम अपने जीवन में एक अलग पहचान में अपने जीवन को जी सकते Look हैं। at Cain. In order to maintain his identity that he is someone and he is worth a self-made man, he snatches what is not his. He takes away from God what was not his to take. और जब काइन की पहचान जो है वो चकनाचूर टूट जाता है, तो काइन क्या करता है? काइन जो चीज उसकी नहीं थी, जो चीज परमेश्वर की थी, उस परमेश्वर की चीज जो कि हाबिल का जीवन था, जो परमेश्वर के हाथ में था, उसको हाबिल छीन लेता है, झपट लेता है, उसको अपने काबू में करने की कोशिश Abel's करता life है। is God's life for Abel. प्रिय चीजों, आप इस बात को समझिए, हाबिल का जो जीवन है वो परमेश्वर में हाबिल का जीवन है। It is not for Cain to take. वो काइन कभी भी परमेश्वर से हाबिल के जीवन को छीन नहीं सकता But है, in order to save his identity, परंतु अपनी पहचान को बरकरार रखने के in लिए, order to know who he is, इस बात को समझने के लिए, दिखाने के लिए कि वो कौन है, he kills Abel. वो क्या करता है? वो हाबिल को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। For Cain cared for what he thought about himself than what he knew about who God is. यहां पर होता क्या है? वो परमेश्वर कौन है उस पर ध्यान ना लगाकर वो कौन है उस पर अपने जीवन को निर्धारित करता है, उसके बारे में सिर्फ सोचता रहता है। An identity apart from God will drive to a misappropriated worship. प्रिय अजीजों, अगर आप अपनी पहचान को परमेश्वर से हटाकर परमेश्वर को छोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा? आपकी आराधना ही गलत हो जाएगी। Cain worshipped, but God did not matter. His देखिए, identity, self-made identity mattered. यहां पर देखो क्या होता है, दोनों ने आराधना किया, हाबिल ने भी किया, काइन ने भी आराधना किया, मगर काइन की आराधना क्या नहीं हुई? स्वीकृत नहीं हुई, परमेश्वर ने उसको स्वीकारा नहीं। Sin therefore is an argument against God's word. प्रिय जीसो, यहां पर अब देखिए, पाप जो है परमेश्वर के खिलाफत, परमेश्वर के वचन के खिलाफ तर्क करने वाली चीज है। Sin therefore is a power which wrongly uses the gift of God by snatching it away and claiming it to be ours, thus incurring a irreparable debt. और यहां पर पाप क्या करता है? परमेश्वर की जो चीज है उसको पाप झपट लेता है, उसको अपना करने की कोशिश करता है, और उस कारण हमारे ऊपर जो हमारा नहीं, जब हम उसको छीनकर अपना करने की कोशिश करते हैं, तो प्रिय अजीजों, उससे कर्ज उत्पन्न होता है। एक ऐसा कर्ज जो हम और आप कभी नहीं चुका What सकते हैं। have you done, Cain? परमेश्वर ये सवाल वापस पूछ रहा है कि हे केन, तूने ये क्या कर डाला है? In order to maintain the self-made worth, whatever identity that Cain has, you have snatched what did not belong to you, and now you stand not being able to pay it back. You cannot bring that life. दूसरे शब्दों में परमेश्वर काइन से कह रहा है, तुमने अपने नाजुक पहचान को बरकरार रखने के लिए जो तुम्हारा नहीं है, तूने मेरे हाथों से वो छीन लिया है। अब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा कर्ज हो चुका है जिसको तुम कभी चुका नहीं सकते हो। Sin is snatching what is not rightfully ours. Please keep that in mind. Sin is snatching from God what is not rightfully yours and mine. इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। जो भी पाप आप और हम करते हैं, छोटा या बड़ा, वो उसका अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं, एक तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो चीज
परमेश्वर की है, जो चीज हमारी नहीं है, उसको हम झपटना, उसको हम परमेश्वर के हाथों से छीन लेते हैं, और उस छीनने के कारण हमारे ऊपर एक ऐसा कर्ज उत्पन्न होता है जिसको हम कभी अदा नहीं कर Tim Keller सकते हैं। says sin is that demand of a sinful heart to seek control of things which we are not to be in control. एक और टिप्पणी करते हुए व्यक्ति इस बात को कहता है, पाप जो है वो हमारे हृदयों की मांग है नियंत्रण के लिए। एक पापी नियंत्रण के लिए हम लोग पाप करते रहते We हैं। feel that we have the right to decide the right and wrong for our lives because we have based our identity on what we feel good about and not about who God is. और समस्या क्या है? क्योंकि हमने गलत पहचान अपनी बना रखी है, अपनी गलत पहचान में हम रहते हैं, उस कारण हम लोग उस पहचान के आधार पर सारी चीजों का निर्णय लेते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, सिर्फ और सिर्फ उस पहचान को बरकरार रखने के लिए। We snatch his time. हम उसके परमेश्वर के समय को छीन लेते हैं, We snatch from his work. उसकी काम से हम छीन लेते हैं, We snatch from maintaining, illicit relationships. जो संबंध जो परमेश्वर पवित्र मानता है उसको तोड़कर हम गलत संबंधों को बनाना शुरू कर देते There हैं। is so many things that we do which are in direct violation of who he is, and therefore we try to declare an autonomy and say that we are self-made people, we are self-made man, woman. प्रिय अजीजों, पाप में हम बड़े सरल शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना खुद का व्यक्ति हूं, मैं अपना खुद की चीजें कर लूंगा, उसके लिए जो भी चीजें मुझे चाहिए उसको मैं छीन लूंगा, झपट लूंगा, उसको अपने हाथ में कर लूंगा। For the essence of sin, and please note, for the essence of sin is the formulation of an identity without God in it. प्रिय चीजों, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। पाप का निचोड़ हम इसमें देखते हैं कि हम एक ऐसी पहचान को बनाते हैं जो परमेश्वर के बिना है। वापस बोलना चाहता हूं, पाप का निचोड़ इसमें है कि हम एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो बिना परमेश्वर का है। And I have been noticing and observing how we are now formulating our identity based on our social media reach. और आज अगर आप देखिए, इस समय पर मैं इस बात को देखता हूं कि हमने जो है अपनी जो पहचान हम किस प्रकार सोशल मीडिया में दिखते हैं उसके आधार पर बना लिया है। Anushka tells me that she feels left out because she's the only one who is not on a social media Instagram, but all her friends are there on Instagram. अनुष्का कहती है कि सारे उसके दोस्त इंस्टाग्राम में हैं, उसको छोड़ बाकी सब लोग इंस्टाग्राम में हैं। No. There you go. बहुत बढ़िया। Not happening. I mean, it's a struggle, dear church, and many Christians are struggling with it. And I would humbly submit to you that be careful. Be careful, because it fuels a lot of jealousy. It fuels a lot of, every time you look at your friend vacationing in Austria and Switzerland, your heart is just, we could only manage a Khajiar in terms of a Switzerland. हम शायद बड़े मुश्किल से खजियारी पहुंच पाए स्विट्जरलैंड के नाम पे, मगर अगर आप अपनी पहचान सोशल मीडिया पे बना रहे हैं तो आप ऐसा जीवन बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा जीवन जीना शुरू कर देंगे जिस पे आप परमेश्वर से चीजों को छीनना शुरू कर देंगे। उसका समय, उसका पैसा, उसके संबंधों को आप छीन कर अपने और अपनी छवि को, अपनी पहचान को आप बनाना शुरू कर We देंगे। steal our time on social media. We are stealing filters on social media so that we do not look like what we are there, and then we create this phantom of a being. हम लोग सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है वो हम दिखाना नहीं चाहते हैं। फिल्टर लगा लगा के हम कुछ और लोगों को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ने जो मुझे बनाया, जैसे बनाया, वो मुझे पसंद नहीं है। जो परमेश्वर का समय है,
उसको हम बर्बाद करे जा रहे हैं सोशल मीडिया में, उसके लिए जो सेवा करनी है उस पर हम नहीं कर रहे Therefore, हैं। the essence of sin is the formulation of an identity which is without and apart from God. इसलिए प्रिय चीजों, पाप का निचोड़ क्या है? एक ऐसा जीवन, एक ऐसी पहचान जिसमें हम बनाने में लग गए हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के अलावा है। Therefore, sin is foremost against God and then against man. प्रिय चीजों, इसलिए वचन बड़े स्पष्ट रूप में कहता है, पाप सबसे पहले किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ है, उसके बाद ही लोगों के खिलाफ है। It's an unpayable debt payable to God. प्रिय चीजों, एक ये ऐसा कर्ज है जो हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं, परंतु हमें परमेश्वर के हाथ में चुकाना पड़ेगा। Cain took Abel's life. कैन ने हाबिल के जीवन को ले तो लिया, He can't pay it back. मगर अब वो वापस चुका नहीं सकता And है। verse 10, last portion, your brother's blood cries out from the ground. और इसी बात को परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे भाई हाबिल का जो लहू है वो दुहाई दे रहा है। Abel's blood is demanding justice. को और जो हाबिल का जो लहू जो बहा चुका है वो न्याय की दुहाई लगा रहा है। Wrong must be righted. जो गलत हुआ है उसको ठीक करना जरूरी है। Justice must be done. न्याय होना जरूरी है। The cry comes from the ground. प्रिय चीजों, उस भूमि से, धरती से न्याय की दुहाई लगाई जा Chapter रही 3, है। the ground is already cursed. और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं जो भूमि, जो धरती जो है उस पर वो श्रापित पाप के कारण हो चुका And है। on that cursed dharti, on that cursed ground, the blood is fallen. और उसी श्रापित भूमि पर, धरती पर हम लहू को बहाए हुए देखते हैं। In Numbers 35:33, spilling of the blood, you shall not pollute the land in which you live, for blood pollutes the land. और इसी बात को गिनतियों में कहा गया है कि लहू जो है वो धरती को खराब कर दी, दूषित कर देती है। Blood is foreign and alien to the ground. प्रिय चीजों, देखिए आप इसको समझिए, क्यों कहा गया कि वो दूषित करती है? क्योंकि जब बनाया गया था तो धरती कभी भी लहू को स्वीकार करने के लिए बनाई नहीं गई थी, इसलिए धरती जो है वो लहू को स्वीकार नहीं कर सकती। For the verse says in 35:33 of Numbers, no atonement can be made for the land for the blood that is shed in it, except by the blood of the one who shed it. Wow. और 33वीं आयत, गिनतियाँ 35 उसकी 33, इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने से ही उस देश की प्रायश्चित हो सकता Blood है। is not meant for the ground, it is meant to flow in one's veins, for blood is life. प्रिय चीजों, लहू जो है वो शरीर में बहने के लिए बनाया गया है, वो धरती में गिरना, धरती में बहने के लिए बनाया नहीं गया, क्योंकि लहू नहीं है तो जीवन नहीं है। Cain is a debtor because now he has to pay with his blood for Abel. अब काइन क्या है? वो एक कर्जदार बन चुका है, और उसका कर्ज क्या है? अब उसको क्योंकि उसने जीवन छीना है तो उसे क्या देना पड़ेगा? वापस में जीवन वापस देना, उसकी खुद की जिंदगी वापस देनी That is पड़ेगी। what Paul calls at falling short of the glory of God. और इसी बात को पौलुस लिखता है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। Because you are no more your identity is no more in who God is. God does not matter. You have snatched something which belongs not rightly to you, and now therefore you are under a debt. और इसी बात को कहते हुए कि अब परमेश्वर तुम्हारी पहचान नहीं है, तुमने एक परमेश्वर को हटाकर अपनी खुद की पहचान बना लिया है, और उस पहचान बनाने के लिए तुमने परमेश्वर से चीजों को छीना है, और इसलिए तुम परमेश्वर के कर्जदार बन गए हो। Allow me to quote an article. I'm quoting from an article which says the history of world religion is the history of human beings trying to come up with methods that will pay the debt we incur to God. और इस बात को यहाँ पर can you just read that one more time? History of world religion is the history of human beings trying to come up with a payback policy to God. इस बात पे वक्त एक टिप्पणी करने वाले इस बात को लिखते हैं कि आप धर्म की इतिहास को देखिए, जो मनुष्य की इतिहास बन चुकी है, और वो अगर उसका सारांश आप निकालेंगे तो वो सारे धर्म एक ही चीज करने की कोशिश कर रही है। वो क्या है?
परमेश्वर का दिया गया वो जो कर्ज जो उनके ऊपर है उसको अदा करने की कोशिशें एतिहाद कर रही है। Various forms of penance, pilgrimage, fasting, and so on and so forth are commonly found in religions of the world as a means to pay the debt of sin and atone for falling short of Creator's law. और आप देखिए अलग अलग धर्मों में एक ही बात की जा रही है। आप तपस्या करने की कोशिश करते हैं, आप दान देने की कोशिश करते हैं, आप यात्रा में तीर्थ यात्रा में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो कर्ज जो आ चुका है उसको चुकाना, उस चुकाने किससे आप उद्धार पाना चाहते हैं, उसके लिए आप तपस्या, तीर्थ यात्रा और सारी चीजों को करना शुरू कर देते But हैं। no penance, no fasting, no pilgrimage will be able to pay the debt we have incurred on an infinite God, because if He is infinite, our debt is as infinite as He. मगर इस बात को मैं आज वापस आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो अनंत हमारा जो कर्जा जो है प्रिय अजीजों, वो क्षणभंगुर नहीं है। वो एक ऐसा कर्ज है जो अनंत कर्ज है, क्योंकि हम एक अनंत काल के परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहे जितनी तपस्या कर लें, जितने तीर्थ यात्राओं में जाने की हम कोशिश कर लें, जितना भी चीजें हम अपने हिसाब से करने की कोशिश कर लें, हम इस कर्ज को कभी अदा नहीं कर पाएंगे। Cain cannot pay, therefore Cain needs the grace of God. अब काइन को क्या चाहिए? काइन क्या नहीं कर सकता है? वो कर्ज को अदा नहीं कर सकता है, तो अब उसको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। Before we will get to the grace of God in this passage, let's look at the second point, the drift we live in, verses 11 and 12. 11वीं और 12वीं आयत में जो बहाव जिसमें हम रहते हैं उसको हम देखने की कोशिश करते He हैं। becomes a restless wanderer. यहां पर क्या लिखा गया है काइन के बारे में? वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो सिर्फ घूमता रहा। You find that in later in verse 14, but if you read verse 11, the word alienated appears there. और यहां पर 11वीं आयत में अगर आप देखेंगे, And verse 12 also, the restless wanderer appears there. और वो कि वो भूमि वो दुनिया से उसको अलग कर दिया गया। In other words, the drift that we live in is the experience of alienation. कहने का ये मतलब है प्रिय चीजों, कर्ज के जीवन को जब हम जीना शुरू करते हैं तो हम लोग एक अलगावट के जीवन को जीना शुरू कर The देते chapter हैं। starts with love and life, but now proceeds slowly to alienation. हाँ, जब वचन शुरू होता है उत्पत्ति में जीवन और प्रेम से शुरू होता है, परंतु यहाँ पर हम अलगावट को देखते The हैं। land which was a platform of worship unto God has now become a crime scene. और जहाँ जो भूमि जो थी परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार किया जाना था, वो वहां पर एक हत्या हो जाता Now है। his actions have consequences. और अब काइन के जो उसने किया है उसका प्रतिक्रिया होना जरूरी है। Now God says you are cursed, you are alienated from the ground. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भूमि से अलग कर दिया जाएगा, For it has received your brother's blood and it cries for justice. क्योंकि उस धरती ने, भूमि ने तुम्हारे भाई के लहू को पा लिया है और वो न्याय की दुहाई लगा रहा Now look है। at it. Sin becomes the punishment for Cain now. जो पाप जो है वो खुद में ही उसके लिए दंड बन जाता है। Your own evil will discipline you. Jeremiah chapter 2 verse 19. जो यिर्मयाह 2 उसकी 19 में लिखा है कि तुम्हारी दुष्टता तुमको ही सिखाएगी। In his evil, he now feels the alienation. जिस पाप ने उसने किया है, उसी पाप में वो अपने आप को दंडित पाता है। By the charge of his own sin, and I quote, Cain has robbed himself not only of his brother, but also the possibility of belonging. यहां पर उस पाप को करने के कारण उसने अपने भाई के साथ संबंध तोड़ा ही तोड़ा, परंतु अब वो किसी का नहीं रहा। Everyone seems afar now. अब हर चीज, हर लोग, हर संबंध पराया हो चुका है। Suddenly Cain is alone. अब काइन जो है पाप के कारण अकेला अपने आप को पाता है। And in verse 12, if you work the ground, it will never again give you its yield. You will be a restless wanderer on the earth. और यहां पर इसलिए वो कहता है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपने मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। Oh, he becomes a drifter. पर तू भटकने वाला भगोड़ा बन जाएगा। You know, a pagoda doesn't have a sense of belonging.
जो एक व्यक्ति जो भागता रहता, भटकता रहता है, वो किसी का नहीं He होता है। remains a fugitive, वो हर समय भागता रहता and है his life will be characterized by gaps and distance. और उसका जो जीवन है वो हमेशा दूरी बनाए रखने में और लोगों से अलग रहने में बन For जाती he है। has no sense of belonging anymore. His home is no more there. His home was his brother, and the brother he has snatched क्योंकि away. पाप के कारण उसने क्या किया, उसने अपने घर में ही आग लगा दी, घर की हत्या कर दी, संबंध की हत्या कर दी, अब वो अकेला हो चुका Do है। you remember God said it's not good for man to be alone? आपको याद है परमेश्वर ने कहा, कैसे कहा कि मनुष्य की इच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। And man in his sin has brought it to that level. अब यहां पर क्या हो रहा है, पाप के कारण मनुष्य क्या हो गया है, वापस अकेला हो चुका है। Man has been created for a sense of belonging and relationship and community. मनुष्य को बनाया क्यों गया था, जिससे कि वो समूह में, प्रेम में, संबंध में अपने जीवन को जी सके। One of the virtues that Christian churches, Christian believers are called for is to have practice hospitality with one another, call each other home, have hospitality, meet as people, meet as often as you could. The first century church did that, and that is what we are created for. We are created for sense of belonging and community. प्रिय चीजों, हमें संबंध के लिए, समूह में एक दूसरे के साथ जीवन बांटने के लिए बनाया गया है। इसलिए वचन हमें नए नियम में कहता है कि कलीसिया के रूप में अतिथि सत्कार में अपने जीवन को जियो, जिससे कि तुम एक दूसरे से मिल सको, जीवन को बांट सको, प्रेम में बढ़ सको। उसके लिए हमें बुलाया गया था, मगर पाप के कारण यहां पर काइन अपने आप को अकेला पाता है। If you find yourself detached from this community, don't blame it on the community. Don't blame it on your God. It's from you. It comes from within you. It's the sin in you which keeps you alienated from the community. प्रिय जी, आज यहां पर आप बैठे, यहां पर बैठ के भी अपने आप को आप पराया पा रहे हैं ना, तो उसके लिए आप कलीसिया को बदनाम मत करिए, कलीसिया पे दोष मत लगाइए, परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। पाप जो आपके जीवन में है, उसके कारण आप पराया चल रहे हैं, पराया हो चुके हैं। He's moved away from who God is. No relationship with God, no relationship with community, a restless wanderer, a drifter. एक भूमि पर भटकने वाला भगोड़ा काइन बन चुका है, जिसका परमेश्वर से भाग रहा है, लोगों से भाग रहा है, एक भगोड़े के जीवन को वो जी रहा है। Or when you eat a good food, what you say? जब आप एक कहीं पर अच्छा खाना खाते हैं, आप क्या बोलते हैं? It's divine, it's heaven. आप कहते हैं, आप इस बात को कहते हैं ईश्वरीय है। When you go to a good natural place, oh, this is a paradise. और आप कई बड़े अच्छे जगह को देखने जाएंगे, जैसे खजियार कहेंगे, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल जन्नत है। But when it comes to your experience with God, which is true heaven, मगर जब आप खुद ईश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने आमने सामने आते हैं, जो खुद परमेश्वर है, we don't characterize it as an heavenly experience. हम लोग यहाँ कलीसिया में बैठ के ये नहीं बोलते, अरे देखो जन्नत वाली बात यहाँ पर लग रही है, कितना सुहाना है ये। Oh, Saturday meetings, it's a drudgery. Why should we come? It's सैटरडे not a में, heaven experience. सैटरडे मीटिंग में क्यों आऊं, मुझे क्या फायदा है, यहाँ पे मैं किलसता हूं यहाँ से मैं आने के लिए। Why should we pray? It's not an heavenly experience. Eating a good food definitely is an heavenly खाना experience. खाना ये तो बड़ा ईश्वरीय एक बात है, मगर प्रार्थना करना ये बड़ी किलसने वाली बात है ये सब। Cain will experience something worse than death. He has lost all sense of belonging and an identification with the community. प्रिय जीजों, यहाँ पर काइन जो है पाप के कारण अकेला पड़ जाता है, एक ऐसा अकेलापन जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो अलग से अपने जीवन में पाप के कारण लोगों से, समूह से दूर हो जाता You है। continue in sin, you will become rootless, ROOTLESS, and a detached human being. प्रिय जीजों, अगर आप पाप में जीवन जीते हैं ना, तो आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जिसका कोई जड़ नहीं होता। जड़ के बिना आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे। The life east of the garden is a life of debt. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं पूरब का जो क्षेत्र जो है वाटिका का, वहां पर हम कर्जा को देखते हैं। God removed them, Adam and Eve, towards the east. और हम देखते हैं परमेश्वर ने उस तरफ, पूरब की तरफ ले गया। And we see that this guy also is proceeding towards the east. और यहाँ पर भी हम देखते हैं काइन जो है वो पूरब की तरफ चला जाता I है। want you to turn with me to Colossians
2:13 and 14. कुलोसियों 2:13 और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा गया है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों को वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। Our sins, like Abel's blood, cries for justice. प्रिय चीजों, हमारे जो पाप हैं हाबिल के लहू के समान वो न्याय के लिए दुहाई दे For रहे हैं। our sins always has a victim. और क्योंकि हमारे जो पाप हैं उसमें एक व्यक्ति फंस जाता है And it cries for our condemnation. और इसलिए उस कारण जो है वो न्याय के लिए या हम पर दोष लगाने it's के लिए crying for रोने लगता है, vengeance. वो बदले के लिए रोता है। We try to escape it. हम लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। We will always blame something else for our sins. हम अपने पापों के लिए हमेशा बोल देते हैं कि अरे इस कारण मैंने पाप कर दिया, उस व्यक्ति के कारण मैंने We पाप कर want to दिया। say that we are not sinners. हम लोग हर बार ये बोलना चाहते हैं कि देखो भाई साहब, मैं आपका तो पता नहीं, मैं तो पापी नहीं But हूं। let me tell you very clearly. प्रिय चीजों, मगर स्पष्टता से आज सुबह मैं बोलना How चाहता much ever you हूं want to run from it, you and I are sinners, and that is a non-payable debt. और मैं इस बात को कहना चाहता हूं आज की सुबह, आप और मैं हम पापी हैं और हमारे पर एक ऐसा कर्ज है जो हम अपने आप से चुका नहीं सकते So, like हैं। Abel's blood is crying for justice, that is, which can be only paid by Cain's blood. और यहां पर जैसे हाबिल का जो लहू न्याय की दुहाई लग दे रहा है, और वो न्याय तभी हो सकता है जब काइन का लहू बहा जाए। Is there a better blood? प्रिय चीजों, सवाल ये उठता है कि और कोई बेहतर लहू है जिसको हम जानते हैं? There is a better blood than that of Abel. वो हाबिल से भी बेहतर एक लहू है जिसको हम जानते Turn your हैं। Bibles to Hebrews 12:24, and I want you to turn there this morning. इब्रानियों 12:24. 12वीं अध्याय उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। And to Jesus the mediator, 12:24. Hebrews 12:24. And to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood which says better things than the blood of Abel. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें Why कहता is है। it better than Abel's blood? ये हाबिल के लहू से क्यों बेहतर है? Because Abel's blood cries for vengeance, क्योंकि हाबिल का जो लहू है वो बदले की आवाज को दुहाई को देता है, literally asking for death on us. और वो जिसने उसको मारा है हम पर वो कि न्याय हो, दंड लगे, उसके लिए वो But दुहाई the blood देता of है। Christ Jesus cries for justice, but this time not for condemning us, but for our reconciliation and परंतु justification. प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है प्रिय अजीजों, वो हम पे दोष लगाने के लिए नहीं, हमको अलग करने के लिए नहीं, मगर हमारे छुटकारा के लिए दुहाई देता The है। blood of Christ cries that I have died your death and therefore have nailed your debt to the cross and therefore you are saved. वो इस बात की दुहाई देता है कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपने लहू को बहाया है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के माफी के लिए मैं मरा हूं। He died on the cross to pay our debt. प्रिय यीशु वो हमारे कर्ज को चुकाने के लिए क्रूस पर मारा गया। And on the cross he cries for justice. हम इस बात को भी याद करते हैं, क्रूस पर वो न्याय की दुहाई देता He है। says, Father, forgive them. वो कहता है कि हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इन्हें माफ कर दे, For I have paid in my death the full debt of their sin. क्योंकि मैंने अपने मृत्यु में इनके पाप का जो कर्जा है पूर्ण चुका दिया My है। blood cries in justice not to condemn them, but to save them. मेरा जो लहू जो है वो न्याय में रोता है, उन पर दोष लगाने के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए। And if you know this Savior, प्रिय चीजों, अगर आज सुबह इस उद्धारकर्ता को अगर आप जानते and हैं, if your identity is in this Savior and in this Lord, अगर आपका जो पहचान जो है इस परमेश्वर में, इस प्रभु में है, then you do not carry that debt of sin on you. प्रिय चीजों, आज आप इस पाप के कर्जे को लेके नहीं चल रहे हैं। Let's look at our own lives.
प्रिय अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवनों को ध्यान से देखें। And where are we placed when it comes to our identity, our sin? हम सवाल पूछें आज की सुबह कि मेरी पहचान आखिरकार कौन सी चीज पे, किस मेरे जीवन के क्षेत्र पे, कौन सी मेरे जीवन की बात पर बनी हुई है। Thank you.